सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो आज हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है, इसीलिए मैं गौरव सोनी सर से आग्रह करूंगी कि सर हम सभी के समक्ष सर का इंट्रोडक्शन सर को इनवाइट करें आज के गेस्ट व्याख्यान के लिए। सर डॉक्टर गौरव सोनी सर। थैंक यू मैम। सभी गुरुजनों को नमस्कार। And today I am highly privileged to introduce my own teacher, Sri Sunil Kumar Yadav Sarji, for this particular Sambhasa. Sir has been expertise in nervous system because I have also taken his lectures during my PG time, and since then Sir has been doing very much work in this particular system especially. So today, as we all know, Sir doesn't need any introduction, but as per protocol, we have to give a small brief introduction to Sir also. So Sir is currently working as the head of Department of Rachana Sarir in National Institute of Ayurveda, Deemed University, Jaipur. Also serving as Dean Student Welfare and Alumni Affairs in National Institute of Ayurveda, Deemed University, Jaipur only. Sir is having 17 years of PG teaching experience and 11 years of PhD teaching and training experience. Sir is working in NIS since 2008. Sir has also done PG and PhD guide to 9 scholars per year and has been currently also the principal investigator in 6 projects. Talking about the research things, then Sir has published 6 books and very large number of articles, like 85 articles are published in index journals. Sir has attended 21 international seminars, and as I have told you, currently Sir is going for IMR projects of 6 numbers. Sir have also visited some foreign countries for the propagation of Ayurveda policies. Like Sir was deputed by Ministry of Ayush in 2019 for NAMA conference in San Francisco to promote Ayush policy. Sir has also promoted Ayurveda at different platforms in other countries like Malaysia, Thailand, Dubai, Sri Lanka. So this was a very small, brief introduction about the great personality, my teacher. So Sir, I welcome you at this platform for your deliberations on your expertise topic, and I believe that we all are going to be enlightened by your thoughts and contribution. Welcome, Sir. Over to you, Sir. Thank you, Gaurav. Good morning, all of you. Respected my senior, my big brother, Dr. Rakesh ji, Dr. Niranjan Gautam ji, KN Singh sir, Ashutosh Yadav ji, and entire team of Vishwa Ayurveda Parishad. That it is a great opportunity that today I am participating in this program. Vishwa Ayurveda Parishad is taking this task. This is a Herculean task because every month to organize a lecture, it is a tough task, and you are doing very smoothly. Sir, I congratulate you. And before start my lecture, I want to share one information to all of you because all our Rachana Sharir faculty and students are here. That Ministry of Ayush is taking an initiative because that initiative was taken actually from PMO. That ministry start to be celebrate a World Body Donation Day, and they send a proposal to us to decide the day and what should be the policies regarding that. What our institute is doing in this regard. So I invite your suggestions that which day is the best day for World Body Donation Day, to declare a World Body Donation Day. अभी हम लोग महर्षि दधीची जयंती के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ये भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के ऊपर होता है। इस बार शायद 11 सितंबर को ये प्रोग्राम होगा। तो आप लोगों के सजेशन इनवाइट है। आप क्योंकि ये बॉडी जो कैडावर है ये एनाटॉमी के विद्यार्थियों के लिए तो फर्स्ट टीचर का रूप में जानी जाती है, तो आपके सजेशन भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन आपके सजेशन आज शाम तक या कल सुबह तक ही दें क्योंकि कल सुबह ये मिनिस्ट्री को हम रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। अगर आपके एक्टिवली आप पार्टिसिपेशन करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए या फिर मेल आईडी के ऊपर आप सेंड करेंगे तो हम निश्चित रूप से जो भी आपके प्रपोजल होंगे उनको भी
मिनिस्ट्री को सेंड करेंगे। तो ये मैं इस प्लेटफॉर्म का आज यूज करते हुए आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। सो कैन यू सी द स्क्रीन? इट इज विजुअलाइज्ड? नहीं, राइट नाउ नहीं है, अभी नहीं है। वेट फॉर फ्यू मिनट, आई थिंक सो। ओके, आई विल अगेन ट्राई। Yes, sir. Visualize it. Right. I see. वीडियो के साइड से वहां पर है सर वो बटन। हाँ सर, मैं वही कर रहा हूँ, एंटायर स्क्रीन को शेयर कर। यस सर, ओके करना होगा सर उसे। हाँ। Is it visible? नहीं नहीं सर, नहीं हुआ। मैं देख पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं? हाँ, तो ऐसे कैसे हो रहा है कि सचिन जी, क्या इशू हो सकता है? यहाँ नहीं आ रहा। मैं राकेश सर आपको भी देख पा रहा हूँ और सुनील सर को भी देख पा रहा हाँ, हूँ। नहीं, स्क्रीन दैट इज स्क्रीन। स्क्रीन अब आ जाएगा सर, अब आ जाएगा, आई थिंक सो। पीपीटी की बात कर रहे हैं निरंजन जी। पीपीटी अभी देखिए सर, आप अब आ गया आ गया सर। हाँ, अब आ गया। ओके, फुल स्क्रीन आ गए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। So today's lecture is related to the embryological development of central nervous system and its clinical correlate. So this is the institute where I am working. This is the holy place of Ayurveda. This institute was established near about 200 years back as a simple Ayurveda department, and slowly the journey of success of this institute, it turns as a government college in 1946, and in 1976 the excellent services in the field of Ayurveda, this was adopted by the Ministry of Ayush as a National Institute of Ayurveda, and Honorable Prime Minister dedicated to this institute to the nation as a deemed university in November 2020 as a deemed university. So it is I think it is a center of excellence in the field of Ayurveda, and this is the journey of this institute. This is the department where I am working, and every year 9 PG scholar and 2 PhD scholar, they will complete their study from here, and lots of UG students, they will complete their studies here. We are 7 faculty members in this department. So I am starting my topic actually. So when we start the nervous system development, we can divide the whole development process into the 4 categories. First process is the embryogenesis, then second one is the histogenesis, then regional development and myelination. So ये पार्ट मैं थोड़ा सा एस्केप करते हुए बढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। सो एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि कुछ चीजें हमें स्टूडेंट्स, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे एमडी स्टूडेंट हो, आजकल NCISM ने सभी के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। Induction program is how they will be enjoy their course, what are the future scope, everything will be discussed in that induction program. So during the induction into the embryogenesis, that is a very important phase, and this induction process will start on the 17th day of intrauterine life. तो बहुत सारे लोग बाग अपनी इस नर्वस सिस्टम या हेल्दी बेबी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, हर कोई चिंतित होता है एक्चुअली। तो जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, सो ये जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इट विल स्टार्ट ऑन द 17th डे, दैट इज द इम्पोर्टेंट डे. सो इट शुड बी अंडरलाइंड दैट the nervous system, the first symptom of the development of the nervous system will be seen
in the intrauterine life on the 17th day of intrauterine life. So we can see the few pictures, and then we can easily understand what the changes occur during the induction program. So during the induction program, the three germ layers, those are differentiated as mesoderm, ectoderm, and endoderm. So underlying mesoderm, it start to be stimulate the ectoderm to behave like a neuroectoderm. So this is the first step on the 17th day. And the first change is occur in the form of a neural plate. So neural plate is formed, and the second process is start on the same day. That is the neurulation. So in embryogenesis, the sub stage is the induction. Then second phase is the neurulation. So neurulation, again, it is start at the end of 17th day. So what changes occur into the neurulation? We can see this MRI plate, and you can find that the neural plate, it start to be depressed here. You can see here the depression will be start into the form of a groove, that is neural groove. And the margins of the parallelly, the margins start to be thicker. You can see here the margins start to be thicker and thicker. So the groove is going deeper and deeper, and the margins are start to be thicker. So it's ultimately the margins come near to each other, and finally they fuse in the form of a neural tube. So it is happen into the neurulation process. So neurulation can be divided into two major groups. One is primary neurulation, that will be start on the 17th day. And the primary neurulation is the important part to develop for a healthy nervous system, because the most of nervous tissue means your central nervous system, your brain is developed into by the help of primary neurulation, and most of the upper part of the spinal cord is also developed by the primary neurulation. So if the primary neurulation occur properly, then everything will be developed properly at the end of the pregnancy. But if something is going wrong in this phase, then there is a problem, and the tissue will be start to be as a malformation of the tissue will be start. The secondary neurulation, that will be start on the 26th day of intrauterine life. By the help of this secondary neurulation, the lower part of the spinal cord, means after the lumbar part, this process will be developed through the secondary neurulation. So if the secondary neurulation is going smoothly, then the lower part of the nervous system, lower part of the spinal cord will be developed perfectly. Otherwise, some clinical conditions will be appear. Those are termed as myelodysplasias. So myelodysplasias is a big term. Under the myelodysplasias, there are lots of clinical conditions like T-third cord syndrome and other things. The same thing happen into the primary neurulation. If the primary neurulation will be developed perfectly, the brain and spinal cord will be developed perfectly. Otherwise, there are some certain clinical conditions. They are termed in the umbrella of dystrophic defect. So dystrophic defect is a big term, and under the dystrophic defect, there are certain clinical conditions like anencephaly and spina bifida cystica. Like these conditions are. We will discuss these conditions into the later part of this lecture. So the important part of this development is how the neural tube will be closed. Because if the neural tube will be closed perfectly, then the whole nervous tissue will be developed perfectly. If the neural tube is closed defectively, then the whole tissue will be developed as a malformation. So there are two theories regarding the closing pattern of the neural tube. One was multi-site closure model that was accepted earlier, previous time, that जो न्यूरल ट्यूब है वो कहीं से भी स्टार्ट होती है बनना और कहीं से भी वो क्लोज हो जाती है. लेकिन slowly after the lots of researches, it is now the accepted model is Zipper model. So according to Zipper model, जैसे जिप बंद होती है उसी तरह से the neural tube to be start to be closed from one end to another end. It will start to close from cervical end and going to the rostral end.
So this phase is very important. If this phase is completed smoothly, then there is a good possibility that the whole tissue will be developed perfectly. And if this phase is disturbed, then there is a lots of chance, there is lots of possibility that the nervous tissue will be developed, maybe in the abnormal form. So when you see this picture, you can see there are some green markings are here. These are the neural crest cells. If you see these neural crest cells, so when the neural tube is closed, these neural crests are separated from this process, and in future they will develop the peripheral nervous system. You can see lots of structure will be developed from the neural crest, like dorsal root ganglia, the sensory ganglia, cranial nerves, and everything will be in the peripheral nervous system. These will be developed by the neural crest. Now the third phase into the embryogenesis, that is the vesicle formation. First phase was the induction in the embryogenesis, then neurulation, and third phase is the vesicle formation. If we see the vesicle formation, then you can find then this neural tube, when the neural tube was formed, there is a homogeneous neural tube. The lumen was homogeneous, but when in the third phase, when the vesicle formation is start, then the neural tube start to be constrict. On the 24th day of intrauterine life, the primary brain vesicles are formed. Means the homogeneous neural tube start to be constrict from one part, from the rostral to caudal. So there is a first constriction you can see here, then second constriction. At the end of this process, the three distinct vesicles are formed. One vesicle, that is prosencephalon, then mesencephalon, and rhombencephalon. And you can teach the students also the Akash Mahabhut. हम लोग जो पढ़ाते हैं, आकाश का मतलब स्पेस. तो बच्चे कई बार स्पेस से, क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन जो हमारे आचार्यों ने की, उससे कहीं तेज है. आज उनके पास मोबाइल है, AI है, एवरीथिंग दे हैव. तो स्पेस का मतलब वो यूनिवर्स को समझते हैं. वो खाली जगह है, या आकाश महाभूत को एक्सप्लेन करना है कि हमारे हर स्ट्रक्चर के अंदर आकाश महाभूत हो सकता है. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि जो केविटी है, जो ल्यूमन है, वो उसको आप आकाश महाभूत की तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दिस प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड टू स्टार्ट ऑन 24th डे ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. जब ये बन जाती हैं तो दिस प्रोसेस इज गोइंग कंटिन्यूअसली, एंड 32 डेज, मतलब पहला महीना कंप्लीट हो गया, देन द brain vesicles are start to be developed. So the prosencephalon again divided into telencephalon and diencephalon. The mesencephalon remain continue, and the rhombencephalon, it is again divided into two, when the metencephalon and myelencephalon. So जो telencephalon है, इससे आप जितना भी visible nervous tissue, means nervous tissue के हम बार बार word nervous tissue use कर रहे हैं, लेकिन it is a concern with brain also. So जितना भी आप जब एक क्रेनियोटोमी करते हैं, जितना भी आपको विजिबल पार्ट दिखाई देता है, मीन्स मोस्ट ऑफ पार्ट इज सेरिब्रम एंड द स्मॉलर पार्ट इज सेरिबेलम एंड फ्यू पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम. तो जितना भी विजिबल पार्ट एक स्पेसिमेन में आपको विजिबल दिखाई देता है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द telencephalon. Then diencephalon, it developed the thalamic part. So most of thalamic part on the medial surface, and it is not visible from the outside. If the intact brain we have, then it is a tough task to see the thalamic, hypothalamus, epithalamus from the outside. Then mesencephalon, it will continue in the form of a brain stem, the one part of the brain stem, that is midbrain. Again, it is not visible from the outside. It requires some dissection, and then you can visualize the midbrain part. Then the metencephalon developed the next part of the brain stem, that is pons, and the one important part, that is cerebellum. Cerebellum, again, it is a largest visible part into the central nervous system, that is cerebellum. The myelencephalon, in future, it will develop the medulla oblongata and spinal cord. And the lumen of this secondary brain vesicle, that will be visualized in the form of ventricles. So sometimes student may be confused that, sir, what is lateral ventricle, what is third ventricle, what is fourth ventricle? So there is an important
question the students are asked, and from the as a teacher, it is our duty to clarify the one thing that the lateral ventricle is a structure that is inside the cerebral hemisphere, and third ventricle and fourth ventricle, these are the spaces between the structures. So that is the important part, and I think every teacher has a responsibility to clarify this important part and at the time of this stage. Now the straight structure, it is start to be slowly to dilated and constricted, dilated and constricted. Now the brain is almost a hemisphere like, it is looks like a hemisphere. So it is required that it should be turned. यहाँ कुछ बैंड जैसा बनना चाहिए. So the bending will be start in the form of flexors. So you can find that there is a three flexors are developed into the early stage. One flexor that will be developed into the midbrain region, and second flexor will be developed into the cervical region. You can see here in this diagram that how the primary brainwave cycle and secondary brainwave cycle start to be molded in the form of flexors. So you can see the first flexor that is at the junction of spinal cord and the middle oblongata. Then second flexor will be developed into the midbrain region, and sometime the third flexor will be found into the pontine region. And slowly the upper part of the brain, it is start to be developed rapidly in comparison to the lower part. ये तेजी से डेवलप होना शुरू होता है और खुद के ऊपर ही फोल्ड होना शुरू होता है, and ultimately at the time of birth it take its complete shape in the form of a hemisphere. So this is the process into the embryogenesis. The whole process developed into the embryogenesis. Now the changes in the second phase, that is histogenesis. अभी बहुत सारी सेल थी, so same time the histogenesis will be started. Means now the cells are differentiate and maturation will be start. So the histogenesis can be divided into two major phases. One is cellular differentiation and the cellular maturation. So at the end of this cellular differentiation, because it will be start at the same time when the embryogenesis was going on, at the end of the third phase, it will be start on the 7th week of intrauterine life. At the end of this cellular differentiate, the three distinct layer will be appear. Those are the innermost layer line into the cavity. You can see that is the ependymal cell layer. The innermost layer is ependymal cell layer. Then second layer is the mental layer, and the peripheral layer is the marginal cell layer. The cells of the mental layer, their process are arranged widely and outside. Those are from the marginal cell layer. So at the end of this cellular differentiate, the three distinct layers are formed in this neural tube. And the next stage is the cellular maturation. So in the cellular maturation phase, because the cells of nervous tissue, those are the neurons. So neurons have a specific structure, that one end is comparatively elongated, that is the axonal part. So axon is growth, the growth of the axon is due to the some filaments, those are actin filaments, and it is a target oriented growth. एक पर्टिकुलर केमिकल के सिक्रेशन की वजह से ये एम्ड ग्रोथ है, उसकी वजह से ये एक्सोन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ग्रो करता है. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सोन इज द डेंड्रिटिक पार्ट, एंड इट इज रैपिडली ग्रोथ टू द randomly to the different directions, and the development of the chemical part and the other things will be developed into the cellular maturation phase. So this is the second phase, that is the histogenesis. So at the end of the histogenesis, the three distinct layers will be developed, and the cells of the nervous system are also developed. Now the third phase, that is the regional development. So when the histogenesis was going on, then the same time in the tube you can see a change. There is a longitudinal depression is appear. So this longitudinal depression is known as the sulcus limitans.
The sulcus सर साउंड गई है आपकी। कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है सर। सचिन जी नेटवर्क का कुछ इशू है? नहीं सर, नेटवर्क तो चालू है यहाँ पे। नहीं, वहां उनके यहाँ शायद है ना। एक बार फोन कर लीजिए सर। हाँ, मैं उनको फोन करता हूँ। हाँ, अभी जुड़ रहे हैं। वो थोड़ा सा वहां एकदम से लाइट का इशू हुआ है, तो वो मोबाइल से जुड़ रहे हैं, अभी कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। ये भी आजकल बारिश के दिनों में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है इसका, लाइट वाइट का कुछ। लेकिन बहुत अच्छा एक कनेक्ट हो रखा है विषय, तो कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर अच्छा, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आनंद आ रहा था सुनने में। आनंद आ रहा था। ये बिजली वालों को भी चैन नहीं, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं धैर्य की। सचिन जी, जी सर। मैंने देखा दिनकर सर भी जुड़े हुए हैं। वो सर किया है, प्रणाम। मैंने कंट्रीब्यूटर में दिया है, लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। हाँ, तो वही सर प्रणाम। सर आप एक बार, आपको मैसेज गया होगा, आप एक बार कंट्रीब्यूटर के लिए ज्वाइन करेंगे सर, आपको मैसेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिनकर सर प्रणाम, सादर प्रणाम। आपको एक मैसेज गया हुआ है, आपको एज ए कंट्रीब्यूटर जोड़ने के लिए सर। आप देखिए आपके पास मैसेज आया होगा, प्लीज जुड़िए सर। हाँ, शायद जुड़ गए हैं सर। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अभी लिस्ट में नहीं दिख रहे सर, है क्या? नहीं है, एम दिनकर शर्मा नाम से है अच्छा, सर। ये एम एम दिखे आपको? हाँ, दिखे दिखे। हाँ, दिनकर शर्मा जी। सर भेजा है, रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंड की मैंने, जैसे ही देखा उनको भेज दिया था सर, लेकिन हाँ वो। हाँ 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 सर, एक्सेप्ट करेंगे तो फिर इधर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जी 100+ लोग जुड़े हुए हैं सर। जी। रीता मारवाह जी भी थी अभी इसमें, देखा था मैंने। उनको भी किया था सर मैंने। हाँ हाँ, रीता मारवाह जी जुड़े हुए हैं। रीता जी आप भी एक्सेप्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा इसमें।
अगर आप सुन पा रहे हैं तो। ठीक तो था मैडम। एन सिंह साहब, बारिश कैसी हो रही है आपके यहाँ? ये पूरी कृपा है, पूरी इंद्र कृपा देवता है। की। हमारे पास में दो पूर्व एचओडी बैठे हैं, एन सिंह जी व विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आशुतोष जी गोवा से। सर नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर, प्रणाम। धन्यवाद। सब लोग, आप लोग समय निकालते हैं, बड़ी बात है सर। व्यस्तता बहुत रहती है, हम सभी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप आज अमित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी को भी एक बार कंट्रीब्यूटर बनाइएगा। डॉक्टर अमित शर्मा जी हैं, मैं बनाता हूँ, देखें उनको रिक्वेस्ट। अमित जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपको एक रिक्वेस्ट गई है, उसको एक्सेप्ट करिए प्लीज। अमित शर्मा जी, दिल्ली। सुनील जी आ गए हैं सर। ठीक। वेलकम सर। हेलो सर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, फुल स्क्रीन कर हाँ, दीजिए। हो रही है सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके ओके ओके। तो इन द थर्ड फेज, हाँ, the regional development will be started in the form of a, after development of a group that is a horizontal group, that is and the sulcus limiters divide the complete cavity into the two parts. One is the upper part, that is known as the alar plate, and the next part the basal plate. So alar plate developed the sensory neurons, most sensory neurons and interneurons, and the ventral plate will be developed the motor part. So this is the third phase, that is the regional development, and the next phase is the myelination. And in this myelination process, the accuracy, the efficacy will be developed into the nervous system, because it is myelinate by the some fatty cell layers. Those are the secreted by the oligodendroid cells, and the myelin sheath wrapped the axonal part of the cell, and it will decide the efficacy of the tissue, how it will be work efficiently. Because in the later stage, when some patients you have might be seen, जो लंबे टाइम तक शराब पीते हैं, जिनके अपने कंट्रोल धीरे धीरे अनकंट्रोल हो जाते हैं, उनके अंदर डीमाइलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो दिस शीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिन केसेस के अंदर डीमाइलिनेशन स्टार्ट होता है, सो दे हैव ए डाइवर्स इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो कुछ भी कंट्रोल तरीके से नहीं कर पाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द myelination process. So myelination process is important because it will be start from caudal to mainly it is start to rostral to caudal order mainly, because it is start to caudal to rostral. ये हमेशा नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ आएगा. तो जितना भी चेंजेस आप देखेंगे, माइलिनेशन का जो प्रोसेस है, इसको आप सबसे पहले जो भी डिसेंडेड पार्ट है, नर्वस टिश्यू का जो नीचे वाला पार्ट है, उसी के अंदर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे. अगर आप एक एग्जांपल इसका कार्पस कैलोसम का, अगर आप कार्पस कैलोसम के अंदर ही माइलिनेशन को डिटेक्ट करना चाहेंगे, तो कार्पस कैलोसम का जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, दैट इज स्प्लीनियम,
So first, the myelination symptom will be appear into the splenium part of the corpus callosum, then trunk region, then genu and other part. So the myelination process will be start from rostral to caudal, and in the cerebral hemisphere it is seen after the delivery, means after the intrauterine life it is seen into the cerebral hemisphere. Now we are coming into the second part of the this lecture, that is the what are the clinical correlates if the normal tissue is not developed. So one phase that was very important phase, the closing pattern of the neural tube. So if the neural tube is failed to close properly, then the abnormality will be start. So lots of congenital malformation of the brain, near about 0.5% of the live birth and 3% of the stillbirth. जितनी भी आप डेथ जो बच्चे मृत पैदा होते हैं उनमें एक कारण ये मोस्ट ऑफ होता है। तो पूरे अगर इसके फैक्टर्स को देखा जाए, दो पार्ट में हम डिवाइड कर दें, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। आज भी एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, अगर आपने देखा होगा, भास्कर के अंदर, कि जो मदर मिल्क के सैंपल लिए गए थे उसके अंदर यूरिया, फॉर्मेलिन, इनकी कंटेंट बहुत ज्यादा थे। तो मदर मिल्क के अंदर कहाँ से यूरिया, फॉर्मेलिन, कुछ अदर जो केमिकल है वो कहाँ से आ गए? तो जो आपको एडवाइस, एक हेल्थी डाइट के बारे में एडवाइस करते डॉक्टर, आप अच्छे ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, लेकिन व्हाट आर द सोर्स ऑफ दोज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो भी सप्लाई है सब्जी की, वेजिटेबल्स की सप्लाई है, जो आउटर एरिया सांगानेर का एरिया है जहाँ की प्रिंटिंग का काम, जयपुर इज फेमस फॉर सांगानेर प्रिंट, बट द सांगानेर प्रिंटिंग is of time, and after the use of that chemical it is drained into the canals and the farmers use that water, the land included water the farmers used to grow for the vegetables. So through that process the chemical reach into the mother, and the developing child or developing phase of that intrauterine life will be affected. So the nutritional factor is very, sometimes you have seen the apple, they are very bright and very shiny. Why they are? Because they are coated by the wax coating. So these are very important things. I don't know why government not is taking seriously on this process, because अगर खाना हमारा एक अधिकार की तरह, एक आदमी जीवित है तो खाने की वजह से अगर वो खाना ही ढंग से नहीं खा पा रहा, तो हम कैसे अच्छे हॉस्पिटल, आप देखिए, आप कैंसर के हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, कैंसर के लिए रोकथाम के आप एडवर्टाइज बना रहे हैं, लेकिन सबको पता है कैंसर कैसे आ रहा है, आपको केमिकल के थ्रू आ रहा है, आपके जो भी पेस्टिसाइड्स उनके थ्रू आ रहा है, उसके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप कम खा लीजिए लेकिन अच्छा खाइए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडिएशन अंडर फैक्टर, रेडिएशन में आप चाहते ना चाहते हुए आप इन्वॉल्व है। हर आदमी के पास मोबाइल है, उसका स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है, उसके एक रिस्ट वॉच है जो उसको आपके रनिंग स्टेप्स को काउंट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस जो आदमी अपने पास चाहते ना चाहते हुए रखे हुए, उन रेडिएशन का एक्सपोजर, समटाइम्स कुछ इन्वेस्टिगेशन में रेडिएशन होता है, उसका इफेक्ट, वायरल इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें एक नॉर्मल प्रोसेस को डिफेक्ट करती है। सेकंड एंडोजीनस फैक्टर होता है, वो एंडोजीनस फैक्टर जेनेटिकली हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपकी जो नॉर्मल टिश्यू डेवलप होने वाला है उसको डिफेक्ट कर देंगे। तो अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि अल्फा फीटोप्रोटीन्स की आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, बिकॉज अल्फा फीटोप्रोटीन्स बेसिकली लीवर के अंदर, फीटल लीवर के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं और ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के अंदर। यदि अल्फा फीटोप्रोटीन्स का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इट इज अ सिंपल साइन दैट समथिंग इज गोइंग एबनॉर्मल, नॉट ओनली नर्वस टिश्यू, समथिंग इज गोइंग एबनॉर्मली। तो ये आपको एक पहला इंडिकेशन आ जाता है। आप कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज का टेस्ट करवा लीजिए, बिकॉज दिस एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज ये सीएसएफ में डेवलप होता है और ये नर्वस टिश्यू में डेवलप होता है और सीएसएफ में एक्सक्रीट होता है। यदि अगर आप उसका सैंपल करवाएंगे
तो CSF में यदि एसिटाइलिन कोलिनस्टेरेज के लेवल नॉर्मल से ज्यादा है तो इट इज डेफिनेटिव टेस्ट कि ये नर्वस टिश्यू इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी आ गई है। एंड थर्ड थिंग इज द USG. So on the basis of these biochemistry, you can identify that the tissue is going developed normally or abnormally. So the folic acid is a important part to develop a healthy nervous tissue, and these are the lots of resources that we can get the folic acid and some nutrition from the healthy nervous system. इस स्लाइड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जो इंडिया में जैसे नहीं है। एवोकाडो के लिए हम कहें कि एवोकाडो खा रही है, एवोकाडो हमने देखा ही नहीं, कहाँ से खाएंगे? एवोकाडो हमारे नॉर्मली होता ही नहीं, श्रीलंका पार्ट के अंदर होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी स्प्राउट्स होते हैं उनके अंदर, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनके अंदर भी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन those should be procured from the healthy environment. अच्छी जगह से, जहाँ कोई फार्मिंग ठीक ढंग से कर रहा हो, जिसको इतना लालच ना हो कि मुझे बहुत सारी यील्ड लेनी है, कम यील्ड दे लेकिन वो अच्छा दे दे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो सारा रिसोर्स अगर आपके पास है तो फिर हेल्दी नर्वस टिश्यू डेवलप होगा। तो हमने न्यूरुलेशन एक पार्ट आया था, एम्ब्रियोजेनेसिस का जो सेकंड फेज आया था, जिसको हमने न्यूरुलेशन कहा था। ये सर किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है, इनको प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए जिनका भी माइक ऑन है। सो सचिन जी, सेकंड कर दीजिए, किसका चालू है उसका म्यूट कर दीजिए सचिन जी। So in the embryogenesis, the important phase was the neurulation, when the neural plate will start to be depressed, and finally it was fused at the end of the neurulation process. And the whole neurulation process was categorized into two major phases. One was primary neurulation, that was start on the 17th day of intrauterine life, and second was that secondary neurulation that was started on the 26th day of intrauterine life. So due to the primary neurulation, if the primary neurulation is not going properly, not the brain vesicle is closed properly, then there are some certain clinical conditions. Those are termed in a big term, that is the dystrophic defect. In this dystrophic defect, there are certain conditions like anencephaly, encephalocele, and myelomeningocele. We will take one by one. You can see the anencephaly. We have some specimen in our museum. जब आप लोग CME में या दूसरे किसी काम से कभी NIA विजिट करेंगे तो इस तरह के स्पेसिमेन आप NIA के म्यूजियम में इजीली आप देख सकते हैं कि एनेंसेफेली के केस के अंदर आपको इस तरह की अपीयरेंस मिलेगी। जो नॉर्मल क्रेनियम है, यू कैन सी हियर द नॉर्मल क्रेनियम हैज ए क्लियर कट cranial vault, because the inside of the cranial vault there is a tissue that is brain. So it requires a perfect space. Otherwise, in the case of anencephaly, you can see there is a second picture that the cranial vault is not developed perfectly. You can see here in this picture that cranial vault is absent. Now, due to the cranial vault, if the cranial vault is not developed, then how the brain will be grow? So it is developed in the form of vascular tissue. It seems like a vascular tissue, vascular mass. So the brain is not developed perfectly. So when the cranium vault is not developed, the orbits are also shallow. They are not perfectly developed. Their depth is not perfectly developed. So the eyes are protrude outside. मेंढक की आंखों के जैसे, it seems like a frog appearance, and you can see they have the eyes of frog and eyes of this specimen are similar. And third thing, if you see the sphenoid bone, the sphenoid bone is जैसे चमगादड़ होता है, फोल्डेड विंग के साथ होता है, जैसे उनके रहते हैं, उसकी जैसी अपीयरेंस होती है एनेंसेफेली के केसेस के अंदर। तो ऐसे केस भी आपके पास मोस्ट ऑफ टाइम डेथ ही होती है। यदि अभी कोई सर्वाइव करके और ऐसा केस आपके पास है तो सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वॉल्ट ही जब डेवलपमेंट नहीं है तो ये जो बच्चा है ये कितना
जीवित रह पाएगा. मोस्ट ऑफ टाइम 99% these are the stillbirths. Now the second stage is encephalocele. So sometimes if a child come with a protrusion, तो कई बार ऐसा दिखता है कि ये कोई ऐसा ब्लिस्टर बन गया है. अगर आपकी इस पार्ट में थोड़ी सी स्टडी नहीं है, जो अर्ली प्रैक्टिशनर होते हैं या बीएमएस का बच्चा है उसने नहीं पढ़ा और वो स्टार्ट कर दिया अपनी प्रैक्टिस, तो समटाइम्स इट लुक्स लाइक ए ब्लिस्टर. एक ब्लिस्टर बन गया है माथे के ऊपर and you start to be dissect or to be start to the treatment. But it is not a simple condition. It is developed during the pregnancy. All the our creation is bones. So if the all sutures are not perfectly closed, then there is a space between the two sutures, sometime into the frontal region, sometime into the occipital region, and the brain mass will be start to be protrude from that space, and it seems like a blister or a big mass on the forehead. So if the knowledge of the development of the nervous system you have, then you will easily identify that it is a process that is deteriorated during the development of the nervous tissue. That's why this condition is appear, and sometime it is seen into the frontal region, sometime into the occipital region, sometime in the parietal region. And the chances in the female child are more. I don't know why it is, but mostly the female child are affected with this process. So this condition is also known as the encephalocele, and you can, if you during your practice, if you find such type of cases, then I think not need to be treatment. It is a, if someone can do, then I think it is a surgical intervention. Purely medication treatment is, I think it is not successful in this particular situation. Then the third situation, that is myelomeningocele condition. The same type of blister and same appearance of the blister can be seen into the back region. You find into the lower lumbar region, there is a blister seen in such type of child. Again, if you have a good knowledge of development of nervous system, then you can easily identify that it is a case of abnormal development of the nervous tissue, and this situation will be start from the neurulation process was started. So in the normal condition, our spinal cord is suspended into a vertebral canal, and our vertebrae are arranged very perfectly. That's why the spinal cord not protrudes from anywhere. It is protected by our vertebrae and it is perfectly developed. But in this case, what happened that there is a space between the vertebrae and the meninges along with the spinal cord. They protrude outside, and on the surface, with the CSF filled, this cavity can be seen along with some spinal tissue. So this situation is known as the myelomeningocele, and these all three situations are due to the defective primary neurulation. These are due to defective primary neurulation. So defective primary neurulation is occur because primary neurulation formed the most of the cerebral hemisphere part, most of your brain part, and the lower lumbar part of the spinal cord. So we move to the next segment, that secondary neural defect. So secondary neurulation starts on the 6th day of intrauterine life. जो भी हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है. तो फर्स्ट मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी फर्स्ट मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी नर्वस टिश्यू. अब सेकेंडरी न्यूरोलेशन भी डिफेक्टिव होता है, क्योंकि सेकेंडरी न्यूरोलेशन से आपका जो डेवलपमेंट होने वाला है वो लंबर रीजन, स्पाइनल कॉर्ड और नीचे वाला पार्ट डेवलप होने वाला है. So one condition, that is dystenetomyelia. So such type of case I have seen in my OPD.
when I was sitting in OPD and a lady come with a X-ray film and I think MRI film, and I have seen that it has 2 cords. और उसने बताया कि ये मेरी डॉटर की एक्सरे है और डॉटर है मेरी कनाडा के अंदर। वो उन्होंने फिल्म भेजी है यहाँ पे इंडिया में कि अगर इसका कोई ट्रीटमेंट हो तो बताएं, क्योंकि दैट लेडी वाज सफरिंग द वीकनेस इनटू द lower lumbar region and the lower extremities. Also there was a neurogenic bladder, उनका कंट्रोल नहीं रहता था और वो मैच्योरेशन हो जाता था बेड में ही। ऐसे कुछ सिम्टम्स थे, तो उनकी मदर आई थी कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या। When I saw that MRI film, and it was clearly saying that it is a double corded hemming cord. Sometimes this spinal cord, after the hemming cord formation, they are fused again. In this slide you can see they are fused again, and sometimes they are suspended as a 2 separate cords. So it is not a life-threatening situation, but sometimes the symptoms appear that the weakness into the lower extremities, lower lumbar region, and uncontrolled maturation. These are the some situation in this condition. Again, it is a part. It can be treated, may be treated through certain processes or like this. If you are frequently getting these cases, but in that case, I tested medicine because the patient was outside of India. So Panchakarma procedures were not done. So if you got some film or some reports like that, then you can easily identify that certain cases have some specific type of anatomy, and on the basis of abnormal anatomy, you can make your diagnosis and treat accordingly. Now the third situation, that is the T-third cord. So normally our spinal cord have a homogeneous appearance and it is suspended in the cavity of vertebral canal. You can see here it is in normal condition and finally it is turned into the cauda equina in the form of fine threads. But in T-third cord syndrome, it is turned into, it looks like a rope. जिस रस्सी के अंदर बल दे देते हैं उसी तरह की इसकी अपीयरेंस हो जाती है। नॉर्मल जो स्पाइनल कॉर्ड की जो अपीयरेंस आपने एनाटॉमी डिसेक्शन में देखी है उससे डिफरेंट इसकी अपीयरेंस हो जाती है। जैसे रस्सी के 2-3 रस्सियां आपस में एक तरह से बांध दी जाती है उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। एंड नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड इट इज सस्पेंडेड इन द केविटी, बट इन दिस केस इट इज एडरेंट विद द केविटी, इसके साथ जुड़ जाती है। एंड द अपीयरेंस इज लुक्स लाइक ए टीथ, जैसे दांत से गम के साथ जुड़ा हुआ होता है इसी तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। दैट सिचुएशन इज नॉट T-third cord syndrome and it can be identified from outside. That is the beauty of this disease, that there is a permanent red patch present on the lower buttock region. You can see, upper part of the buttock region and the sacrum region, you can find there is a redness that is known as the hemingoma. And it is remain continue. Sometimes it looks like it is eczema and sometimes some skin diseases, but associated with this redness, you find the another thing that is the similar to that syndrome was that is dystometomyelia. इसी की तरह से इसके अंदर भी पैरों के अंदर नमनेस होना या पैरों के अंदर वीकनेस होना and neurogenic bladder, these symptoms are also associated. The another beauty of this disease, not beauty, that is the symptom appear on the surface. We have the 2 dimples on our backside, that is posterior superior iliac spine, and but here in this situation you can see there is an additional dimple and it is in the midline, and it seems like a star or diamond. It seems like a diamond or star. So additionally, if that type of dimple or depression you find on the surface, then no need to be any further investigation. It shows your knowledge and your ability, then you have diagnosed it clearly that it is not a normal symptom. It is, ये कोई आपका एडिशनल नहीं है कि जैसे आप चीक्स के ऊपर डिम्पल पड़ते तो आपकी ब्यूटी का साइन है, ये ऐसा कोई भी साइन नहीं है। ये साइन है एक एबनॉर्मल नर्वस टिश्यू डेवलपमेंट का,
during the neurulation process, and this is appears into the your spinal cord, and symptoms are similar with associated with these two additional symptoms. तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल व्यू है, क्योंकि मैं जितना टाइम दिया गया उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी, तो ये कुछ आपको आउटलाइन है, बाकी आप लोग अपने अपने फील्ड में कर ही रहे होंगे। जो एनआईए का शरीर रचना डिपार्टमेंट, उसके अंदर कुछ और प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं टाइम रहते हुए, ताकि ये प्लेटफॉर्म है मुझे आप सबसे बात करने का, बिकॉज वी हैव ए वेरी गुड वर्चुअल डिसेक्शन लैब। So when you will come visit NIA, it is our fortune that we will demonstrate you that this virtual dissection table, it is a miracle tool. We can dissect everything, every part of the body virtually in a different way. This asset we have. This plastination technique are also we are going to be developed in our department. It is our future step. We have organized 2-3 workshop also, and we are this project in our pipeline that we will in future we will establish this lab in our department. We are doing the lumen casting and other things in our department. One program in our department we are going to be we are organizing that the Gyandeep Upakram means a donation of books. NIA have lots of funds and everything in NIA. It is supported by Ministry of Ayush, but this program is organized for the purpose. One purpose is that the students will connect, faculty will connect with the department or institute emotionally. जब वो एक बुक देते हैं, जब भी कभी वो विजिट करते हैं, तो भाई उनको एक फील होती है कि मैंने मेरी लाइब्रेरी के अंदर एक बुक डोनेट की है, तो दैट इज इमोशनल अटैचमेंट विद द डिपार्टमेंट। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। जब भी कोई अच्छा फंक्शन होता है, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, वी डोनेट ए बुक टू अवर डिपार्टमेंट। एक दूसरा प्रोग्राम हम डिपार्टमेंट में चलाते हैं, दैट इज 1 पर्सन 1 प्लांट इनिशिएटिव। एक जो भी स्टूडेंट है, जो भी फैकल्टी है, उसके नाम से एक प्लांट डिपार्टमेंट में उसकी केयर करना, उसको पानी वानी देना, ये सब उसकी ओवरऑल जो भी इसको रिक्वायरमेंट है उस प्लांट के अच्छी हेल्थ के लिए, वो सब एक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि डिपार्टमेंट का ब्यूटिफिकेशन भी हो और डिपार्टमेंट अच्छा भी हो। प्रोग्राम शायद उसकी फोटो करता हूँ, that is body donation program, that is we are running successfully from 2019, and recently means this today is Sunday, on I think Friday or Thursday, we received a 39th cadaver in our department, and it is a very successful program because the SOPs of that program is very unique. मैंने आपको टॉपिक ये दे दिया था, बाद में मुझे ध्यान आया कि शायद मैं बॉडी डोनेशन बोलता तो शायद ये और भी ज्यादा फ्रूटफुल होता, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज इस समस्या से जूझ रहे हैं और हम भी थे। 2019 से पहले वी आर इन द कंडीशन ऑफ लाइक ए बैगर। एसेंस मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही हम डिपेंड थे, बट आवर वाइस चांसलर टुक द इनिशिएटिव, एंड फ्रॉम 2019 और राइट नाउ वी रिसीव्ड cadavers frequently, or even now we are in the capacity to donate some institute, but it is our limitation that we can donate only the institute, those are under the Ministry of Ayush. Recently we have donated 4 cadavers to NIA Panchkula. So this is the another program in our department we are running, and this is the team Sharir Rachana in NIA, Chancellor Professor Sanjeev. Thank you so much. This is all about this lecture. Thank you so much. And I'm very much thankful to the entire team of Vishwa Ayurveda Parishad, especially Ramesh sir, Nitin Gautam ji, Sachin, Gaurav ji, or lots of those are associated with Vishwa Ayurveda Parishad. I am thankful so much. थैंक यू सो मच सर, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा सर। वैसे भी नर्वस सिस्टम है सर, बहुत
एक इसको बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन सर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो क्लिनिकल कोरिलेट किया है, बहुत ही अच्छा रहा सर। इसके बाद मैं डॉक्टर सचिन खेड़ीकर सर को बुलाना चाहूंगी कि सर जो भी किसी के अगर डाउट्स हों तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, और सर इसको सेशन को कॉन्क्लूड करेंगे। रिस्पेक्टेड डॉक्टर सचिन सर। नमस्कार। किसी को कोई डाउट्स हैं? एनीबडी इज हैविंग डाउट्स? If you have any doubts, you can raise your hands. Sir, you are already contributor. Ken Singh sir, you are already contributor. You can raise your doubts or any suggestions to this forum. आवाज आ रही है केएन सिंह सर? डॉक्टर अमल कामले जी, आपको कंट्रीब्यूट। हाँ केएन सिंह सर कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मेरी वॉइस आ रही क्या? हाँ आ रही है सर, आ रही है। जी सर जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। Okay sir, thank you sir, thank you. First of all, I want to convey congratulations to Professor Sunil Yadav ji, head of the department of Rachna Sari, faculty, you can say deemed university, National Institute of Ayurveda, our mother institute. We are proud of you. I want to raise one question, is that what is the cause of the spina bifida? And I want to add some regarding to this topic. Basically, this topic is covered under the congenital malformation, and with added with the development of the nervous system. So, in regard of the congenital malformation, nature have a you can say a system ki out of the 100% conception, 50% will become abort due to these conditions, that are the condition of the teratogenic factors, whatever produced by our diet pattern, our environment, our genetic causes. So out of 50% aborted, the cause of is find out out of the 50% is 50% is the genetic cause, chromosomal and the genetic mutations. अगर ऐसा नहीं होता तो जो कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन है, जिसमें कि ये सारे डिजीज जो कि यादव जी ने बताए हैं, वो होते 12% पूरी पॉपुलेशन के 100 में से 12 जो है वो कंजेनाइटल मॉलफॉर्म्ड होते। लेकिन नेचर क्या है कि उसको बैलेंस करती है, और बैलेंस करने के बावजूद जो है वो परसेंटेज घट के आ जाता है 3 से 4%। दैट इज रिटन इन द लैंगमैन में ये लिखा हुआ है। तो हमें मतलब चिंता तो करनी है रिगार्डिंग टू द cause of the congenital malformation, but nature is helping to us regarding that, क्योंकि वो सारी जो conception है they will become abort by the spontaneous abortions। और आजकल अगर उसका डाटा हम लोग कलेक्ट करें कि spontaneous abortions का रेट कितना है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो पता ही नहीं चलता कि कब अबॉर्शन हो गया क्या हो गया, क्योंकि दैट आर कॉल्ड द spontaneous abortions। तो उसमें ये सारी। दूसरा मैं कहना चाहता था कि इसमें जो डेवलपमेंट है तो उसमें होता ये है कि जो है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द मेजोडर्म, जो एक्टोडर्म है, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, नोटोकॉर्ड जो है इंड्यूस करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। तो पहले न्यूरल प्लेट होता है, प्लेट के बाद ग्रोविंग होती है, ग्रोविंग के बाद न्यूरल ट्यूब बनता है। उसमें फिर 2 न्यूरोपोर होते हैं, क्रेनियल और कॉर्डल। तो क्रेनियल जो है दैट विल क्लोज ऑन टू द 25 डेज एंड कॉर्डल इज क्लोज ऑन टू द 28 डेज। अगर ये दोनों क्लोज नहीं होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले क्लोज होता है कॉर्डल वाला,
फिर जो है क्रेनियम वाला, तो क्रेनियम वाला नहीं होगा तो उसमें जो एनेंसेफेली और ये सब जो डॉक्टर साहब ने बताया वो सारी कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो दैट आर द कंजेनाइटल। और उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसमें 3rd वीक से लेकर के 8th वीक तक, दैट इज द क्रिटिकल पीरियड। if any teratogen interact with the developing embryo in this period, because at this time most of the organs are differentiating from each other, so that are very sensitive, that are very vulnerable for the develop of the congenital malformations। तो उस समय जो है डाइट को हमारे आचार्यों ने भी बताया गया कि मंड विलेपी और ये सब अगर उसमें 10th चैप्टर में जाते हैं शिशु शरीर के, तो उसमें कहीं पे भी वो जो है मतलब ऐसी डाइट को प्रोवाइड नहीं करना चाहते, उसमें केवल सॉफ्ट डाइट जितनी है उनको ही प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक कॉज हो सकता है उसको प्रिवेंट करने का, बिकॉज कुछ डिजीज हैं जैसे कि स्पाइना बाइफिडा की मैंने बात की, तो स्पाइना बाइफिडा में या जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनमें प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट। प्रिवेंशन अगर हम कर सकते हैं तो वो ज़्यादा ईजी है, जबकि उसको ट्रीट करना, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने अमेरिका का वो दिखाया है सिटी स्कैन वगैरह जो है, तो दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट आफ्टर दैट, आफ्टर प्रोड्यूसिंग द डिजीज। प्रिवेंशन इज वेरी इजी। तो मेरा क्वेश्चन लास्ट में यही है। हाँ, एक चीज और रहेगी कि इसमें जो डेवलपमेंट था, तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है तो उसमें एक सिंगल लेयर्ड वॉल बन जाती है, जिसमें सेल्स होते हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, और न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं बाइपोलर और उसके बाद मल्टीपोलर में, और एक और सेल्स होते हैं ग्लियोब्लास्ट जो कि डेवलप करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक और फिब्रिल एस्ट्रोसाइट्स को, और एक थर्ड सेल्स यहाँ पे हो जाते हैं हमारे ओलिगोडेंडोसाइट्स या ओलिगोडेंडोग्लिया, जो कि माइलिनेशन का काम करते हैं, जैसे कि यादव जी ने कहा कि उसको फंक्शनिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। और लास्ट में जो रिमेनिंग इनसाइड जो यादव जी ने बताया एपेंडाइमल सेल्स, वो लास्ट में रह जाते हैं विद इन द कैनाल, जो न्यूरल कैनाल है उसके अंदर, या जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो कैनाल फॉर्म होता है तो अंदर की साइड में हमको मिलता है, या वेंटिकल जो है उनकी इंटरनल जो लाइनिंग है वो सब एपेंडाइमल सेल से बनी होती है, तो वो लास्ट में जो बचे हुए सेल्स हैं वो होते हैं। और पहले सेल्स न्यूरो जो है हमारा एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो इनसाइड होते हैं, उसके बाद मेंटल लेयर आता है, उसमें वो माइग्रेट हो जाते हैं, फिर वो अपने एक्सॉन्स बनाते हैं, एक्सॉन जो है मार्जिनल लेयर में एक्सटेंड करते जाते हैं, और इस तरह से पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, जिसमें कि यादव जी ने ऐड किया कि उसमें न्यूरल क्रस्ट सेल्स फॉर्म होते हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। बहुत सारे जितने गैंग्लियन है सारे हमारे, है ना, सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है, उसका जो है कॉर्टेक्स रीजन है, ये सारी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, बहुत सारी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उससे बनती हैं। तो लास्ट में मेरा क्वेश्चन यही है यादव जी से कि व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द स्पाइना बाइफिडा, उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन पार्ट ऑफ इसे, ट्रीटमेंट करना तो मुश्किल है, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है इसका? सर सुन पा रहे हैं? सर हाँ सुन पा रहा हूँ सर। मैं एज सच एक्चुअली देखिए, जो हमने 2 पार्ट किए, हमने कॉजेज किए ना, तो उसमें बेसिकली जो मेन कॉज आपका न्यूट्रिशन आज की तारीख में देखें, जेनेटिक्स कंट्रोल में नहीं है, जेनेटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको इनबिल्ट आया है, लेकिन जो डाइट पैटर्न हाँ उसको आप नहीं कर सकते। डाइट के लिए आप देखिए, आपको किसी भी जो आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए, जो आपके माता जी ने खाया, उनके पिताजी माता जी ने खाया, वो डाइट पैटर्न में किसी भी जो प्रिजर्वेटिव या पैक्ड फूड या उस वाली डाइट को अवॉइड करना चाहिए। जो आप भी फ्रूट या जो भी आप वेजिटेबल ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर आज की तारीख में, क्योंकि आप भले ही आप डेली आप खीरे खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, लेकिन उसका सोर्स क्या है। अभी मैं कह रहा हूँ, आज का आर्टिकल मेरे सामने रखा है, मैं अभी ये लेक्चर देने से पहले ही बिल्कुल एकदम रिलेवेंट है सर आपका, लेकिन उसमें जो ये स्पाइना बाइफिडा वाला है ना, इसमें कुछ है क्या ऐसा कुछ इसको प्रिवेंट किया जा सकता हो? ऐसा सर मेरे नॉलेज में नहीं है, आप भी इसमें कुछ पता है जा सकता है मेरे अच्छा, अगर आप मेरे नॉलेज के हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, मतलब उसमें बताया जाता है कि जो फॉलिक एसिड है ना वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हमारे हेल्थ सेंटर्स में भी है जो आयरन टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उससे वो प्रिवेंट होता है 75% तक।
और अगर तो वो सर इस तरह से प्रिवेंशन किया जा सकता है मतलब, लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता अगर वो डेवलप हो जाए स्पाइना बाइफिडा। हाँ, मेरे प्रेजेंटेशन में अगर आप देखा हो तो एक साइड कंप्लीट में फॉलिक एसिड और उसके सोर्स की रखी थी भाई, हेल्दी नर्व टिश्यू हाँ, रिक्वायर्ड, लेकिन वो हेल्दी न्यूट्रिशन के में ही आ नाम जाता पे है। आज की तरह, हाँ, के नाम पे आप पीस खा रहे हैं या कुछ और चीज ले रहे हैं, दैट इज नॉट ए गुड सोर्स। दूसरी बात क्या है कि अगर आप रीड आउट करेंगे भाई आपको ग्रीन वेजिटेबल येलो फ्रूट्स के अंदर मिलता है, लेकिन सोर्स क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जयपुर के अंदर, आप जयपुर में जाएंगे तो पेरीफ्री में देख के आइए, पूरे सांगानेर के अंदर पंप लगे हुए हैं खेतों के अंदर जो पानी जा रहा है। जी जी जी। अब वहां से आप बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल तो लेके आ रहे हो, लेकिन वेजिटेबल बनी किससे है? मैं ये जो आपको मैं नहीं इसकी नहीं, स्लाइड नहीं बना पाया, अगर मैं वो आपको तो इतना दिखाता ज्यादा आजकल हार्मफुल है कि आप कहीं से भी बच नहीं सकते। एयर में भी है वो सब चीजें, पॉल्यूशन है कि वो वहां से पकड़ लेगा उसको। तो जो डेली चीज हमें इंटेक्ट करते हैं, अगर उसके अंदर कुछ केमिकल इन्वॉल्वमेंट है, दैट विल डेफिनेट डिटोरेट योर नॉर्मल प्रोसेस। यस यस, यस थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, थैंक बोलिए बोलिए कुछ मैडम, यादव यू जी आर कुछ कहना ऑडिबल, चाहते हैं? प्लीज। आशुतोष यादव जी ने आशुतोष यादव जी ने हैंड रेज किया है। जी सर, यस सर, यस सर, यस हाँ सर, सर जी प्लीज प्लीज। बताइए। सर। अभी प्रोफेसर केएन सिंह सर ने कहा प्रिवेंशन ऑफ स्पेना बाइफिडा, तो वहाँ प्रोफेसर सुनील सर ने भी बताया अपना, बट बिहाइंड ऑफ रीजन दिस, ये हम फॉलिक एसिड देते हैं तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली अभी टॉक्सिसिटी की बात आया, प्रोफेसर सुनील जी ने कहा आज का दैनिक भास्कर जयपुर और राजस्थान पूरे हर जगह सरप्लस वाइड रेंज में उन्होंने लिखा कि मिल्क में यूरिया और सम टॉक्सिन्स हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। बट यहाँ क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन मेजर ऑफ स्पिना बाइफिडा, ठीक है, फोलिक एसिड हम देंगे, बट बिहाइंड ऑफ रीजन, इसके रीजन क्या है, यानी अदर सोर्स भी हो सकता है जिसको कि हम यूज करें तो स्पिना बाइफिडा ब्रेक हो सकता है। तो मेरा तो ये केवल अभी क्वेश्चन है, मेरा लेक्चर नहीं है जो मैं कुछ सुझाव या स्पेशल लेक्चर दे सकता हूँ इस पर, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभा। हेलो, सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है हेलो, मैडम। हाँ सर, हाँ जी आ रही है, आ रही है। नमस्कार डॉक्टर आशुतोष यादव जी, नमस्ते। और सभी को नमस्ते। नमस्ते। और प्रोफेसर सुनील यादव जी, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान है। पर जो अभी बात कर रहे हैं केएन सिंह सर, सर जो फॉलिक एसिड को आजकल जो न्यू मतलब मॉडर्न वाले भी जो है सर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, कोई भी कपल अगर प्रेगनेंसी के लिए जा रहा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे जो है बहुत लेट प्रेगनेंसी ले रहे हैं, तो उनको बाय प्रिकॉशनरी फॉलिक एसिड प्रोवाइड करा दिया जाता है। 3 मंथ गर्ल्स जो प्रेग्नेंट के लिए है, वुड बी गर्ल लेडी, उसको कहा जाता है कि आप लीजिए, बिकॉज ये है कि जो जो स्टेम सेल्स है, न्यूरल स्टेम सेल्स पे फॉलिक एसिड्स का अच्छा मतलब इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं अच्छे कह सकते हैं फंक्शन के रूप में दिखती है। इसलिए शायद सर इसको शुरू से मतलब दिया जाता है, और ऐसा है सर, 3 मंथ्स तो देते ही है वो। दूसरी बात सर, अगर ये सब चीजें रोकनी है तो बीइंग आयुर्वेदिक सर, हमारी जो गर्भणी परिचर्या है जिसमें मधुर द्रव्यों का ज्यादा यूज बताया गया है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एनाटॉमी से उनसे बचा जा सकता है। हेलो, हेलो, यस मैम, आवाज हाँ, आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आप लोग उसमें भी बताया गया है कि नहीं ओनली समझ में आ रही कि आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। 70% तक ही पर प्रिवेंट मेरा किया जा ऐसा है, सकता है। फॉलिक एसिड से 70% तक प्रिवेंट हो जाता है। किसमें स्पाइना सर? बाइफिडा जो फॉलिक है एसिड की फॉलिक एसिड प्रोवाइड करने से 70% हेलो प्रिवेंट हो जाता है। सर,
सिर्फ स्पाइना बाइफिडा की बात नहीं कर रही हूँ सर, और भी जो अनोमलीज हैं हाँ, और सभी भी के लिए बात करें, जो नॉट फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट फॉर द बाइफिडा ओनली, बिकॉज अदर मैं केवल बायोफिटा पे मेरा अनोमलीज वी क्वेश्चन कैन था, इसलिए प्रिवेंट। मैं बायोफिटा पे बता रहा हूँ। अदरवाइज तो पूरे जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे ही जो टेटोजेनिक फैक्टर्स हैं उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा। हाँ सर, फॉलिक एसिड को दिया जा रहा है आजकल, न्यू कपल्स को शुरू में ही दे देते हैं, प्रेगनेंसी के पहले ही। अभी वो इसको अगर ऐसा विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि करना है फोरकमिंग में, तो उनको 3 months बिफोर गर्ल्स को चला दी जाती है, इसीलिए कि वो न्यूरो सेल्स पे अच्छा वर्क करें, न्यूरो स्टेम सेल्स पे, कि जैसे कोई भी अगर चांसेस भी है, जैसे एनॉमलीज भी है, इवन क्रोमोसोम भी होने वाली हो फर्दर, तो उन पे अच्छे रिजल्ट है और अच्छा मिल भी रहा है। Yes, madam, I agree for this, but our question is behind this only use of the folic acid and so many factors, prevention for this. But use of the folic acid any other way, behind of the main root. This is one of the factors. Root of the main root of the behind this. रूट पे तो अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। No, आप ही के अंडर में you explain Ayurvedic point of view, or may you explain the modern point of view? Sorry to interrupt. I जो think सर आत्मबल, जन्म बल, अवस्था, these are the causes factor for the congenital anomaly. आदि बल में जो आपकी पूर्वकृत कर्म से आ रहे हैं उनकी वजह से हो सकती है, जिसको हम क्रोमोसोमल एनोमली में ऐड कर सकते हैं आज के जमाने में। Yes, I understand this thing, but our question behind this, folic acid and any other substance used, they prevent the congenital brain or spinal cord abnormality. But I want to know about behind of this region. Which type of action do the folic acid? Which type of action do the Garvini Paricharya? इसके लिए तो सर, तो इसके लिए तो फार्मास्यूटिकल एक्शंस के बारे में और पढ़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल मॉडर्न की बात आ जाएगी, इतने डीप में तो हम लोग नहीं पढ़े इस समय। बट इट इज इसका एक्शन किस तरह से फॉलिक एसिड कर रहा है सेल्स में, तो ये तो और डीपली स्टडी करने की बात है, जो एट प्रेजेंट हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। वो हो सकता है पढ़े तो सभी लोग बता पाए उसको, बट इट बिहाइंड द कॉज पीरियड द इफेक्ट। ये भी हो सकता है मैम, जो फॉलिक एसिड में कंटेन है मैम, वो कहीं ना कहीं No, our question not for any audience. Our question to our guest, respected our guest speaker, Professor Sunil Yadav. Yes. So, maybe some highlight for our question. You have any idea? सर, आप आयुर्वेदिक डाइट प्लान के बारे में बात करना चाह रहे हैं? फॉलिक एसिड के रिसोर्स? Our question no Ayurvedic diet plan, but our question is prevention by the folic acid or any iron component. How it is work? Yes. Then iron component, how type of mechanism occurs in intrafetal life during formation of spinal cord or brain? I think it is required a separate lecture, sir. Yes, I know this. It is required This is a the separate lecture for full length. But this question is not any audience. If Dr. Ashutosh Yadav know about this, so he can tell. He is free to tell. Yes, sir. If you know about this, you can tell, sir. Okay, sir. I know, but this place is not my place. This is place the Professor Sunil Yadav, sir. So, briefly. Sunil Yadav, sir, says that he will take another lecture But for this, behind this, for clarifying this, yes, sir. this problem. Yes, sir. Your order maybe I follow this. Now, that's why the question is now finished, I think. Yes. This is not very big question, sir. This is only one thing. During neural formation or brain formation, must be needed vitamin B12 and iron. Yes. Yes, sir. Must be needed vitamin B12 or iron particle. आशुतोष यादव जी, जो ये मल्टी विटामिन है ना, उसमें भी फॉलिक एसिड मिलता है।
Yes, yes, पूरा I ही know. प्रिस्क्राइब किया जाता है, मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो Yes, yes, उसमें sir. सारे विटामिन का भी रोल है, No, मिनरल्स का रोल है, फॉलिक एसिड का रोल है, सब अपना रोल प्ले करते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स एंड द डिवीजन ऑफ द सेल्स एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यू, तो सब में उनका रोल होता है। But basic thing is different. Our Ayurvedic test also describe this thing: pre-conception, during conception, and after conception. So many dietary regime in our country. या 10th चैप्टर जो है सूक्ष्म शरीर का, उसमें सब दिया हुआ है। But behind this only one factor is serotonin secretion by the folic acid or vitamin B12. They are responsible for the happiness in our mother and child, both. These are the so many publication in research papers in India also and foreign country also. Behind this only one factor in happiness. Happiness is going to mother or child, totally prevent the spinal or brain developmental anatomy congenital deformities. Only one factor is serotonin secretion behind this. Maybe you see so many articles, so many publications, but this place is not my place to explore all the things. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ashutosh ji. डॉक्टर अमर कांबले जी ने भी हाथ रेस किया था। अमर कांबले हैं फ्रॉम गुजरात, शायद वो नहीं है। और कोई पूछना चाहता हो तो हैंड रेस कर सकता है वो, मुझे लगता नहीं कोई और है। Should we proceed, sir? हाँ, मुझे लगता है आगे अपने को बढ़ना चाहिए। अपने इनमें से कोई देख लीजिए, कोई अगर बोलना चाहते हैं तो अपने है इसमें ग्रुप में। रीता मारवा जी शायद निकल गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। योगेश वाणी जी हैं, अगर वो बोलना चाहें तो। योगेश वाणी जी, आप सुन रहे हैं? आकाशदीप मेश्राम हैं सर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ योगेश जी सर, नमस्कार सर मैं सुन रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा है डिस्कशन सुन के जी। आयुर्वेद के दृष्टिकोण पर ऐड करना चाह रहा था जी। कि जैसे कि आशुतोष यादव सर ने बताया कि जो खुशी वाली बात जो उन्होंने की, सेरोटोनिन का सिक्रेशन जो बढ़ाता है, फोलिक एसिड या जो इस तरह की जो मल्टीविटामिन जो होते हैं, उन्हें परंपरा से हूँ। मैंने थोड़ा सा एक बात सीखा था कि जैसे जो गर्भवती माताओं में वृद्धि होती है, उसमें हमारा सुश्रुत ने बताया कि चतुर्थ मास में हृदय जो प्रवक्त भाव होता है, या पंचमे मन बुद्धि, इस तरह जो पढ़ते हैं, तो सर वहां जैसे 6वें महीने में बुद्धि पर कार्य करने वाली जो औषधि जो थी उसको देने का वहां प्रावधान था, या 5वें मास में मन जो होता है वो प्रतिबुद्धि पर होता है, इसलिए 5वें महीने में मन पर कार्य करने वाले जो द्रव्य है या जो ऐसे औषधि देने का वहां पर चलन था इस तरह का। तो ये वास्तव में यादव सर ने जो बोला कि वो खुशी को बढ़ाने वाले, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि पर कार्य करने वाले औषधियां है या मन पर कार्य करने वाली जो औषधियां है, वो ये खुशी बढ़ाने का ही काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल देखने में आया। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी। और कोई अपनी बात रखना चाहता हो? आकाशदीप जी हैं? आकाशदीप जी हैं सर? विश्राम जी को कंट्रीब्यूटर बनाने की आपकी रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट भेजी हुई है आपको सर। आकाशदीप जी, एक्सेप्ट को आपके पास रिक्वेस्ट आई है, उसको एक्सेप्ट करिए प्लीज। कंठी सर भी जुड़े हैं सर। हाँ कंठी सर भी जुड़े हुए हैं, बना सकते हैं उनको, वो अभी जुड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो जुड़ सकते हो तो देखिए। ऐसे लोगों का जुड़ना तो हमारे लिए एक वरदान है। कंठी सर अगर जुड़े हैं सर, कंठी सर आपको भी एक रिक्वेस्ट गई है सर, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तो हम आपको कंट्रीब्यूटर बना पाएंगे सर। आकाशदीप जी, आपको एक रिक्वेस्ट गई है, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपको जोड़ पाने में सक्षम होंगे।
आपको सुन पाने में सक्षम होंगे? शायद नहीं सुन पा रहे अभिषेक हैं। कुमार जी को कुछ कहना है शायद। अभिषेक जी कुछ बोलिए। जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। प्रणाम सर। सर एक क्वेश्चन था, प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी पॉसिबल बाय द अल्फा फीटोप्रोटीन, ये सर ने एक्सप्लेन किया था सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अल्फा फीटोप्रोटीन का इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्या रिलेशन है सर? अगर वो डिटेक्ट हो रहा है तो एक्चुअली वो करता क्या था जो वो डिटेक्ट हो गया, इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी आया? एक बार वापस रिपीट करिए सर। सर जो अर्ली प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है सर, वो होता है जब भी अल्फा फीटोप्रोटीन हमें मिल जाता है फ्लूइड पे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि अल्फा फीटोप्रोटीन का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्या रिलेशन है सर? वो अगर डिटेक्ट हो रहा है और डिफेक्ट भी आ रहा है तो उन दोनों का कोई रिलेशन है सर? जी। हमारे बीच में जो विद्वान मौजूद हैं, कोई इस पे अपना चर्चा देना चाहेंगे? आशुतोष जी, कामेश्वर जी या अनुभा जी? क्योंकि सुनील जी सर को जाना पड़ा है अभी। सुनील जी को थोड़ा कोई अर्जेंसी थी इसलिए उनको निकलना पड़ा उन्होंने, तो हमको ही चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसमें जो विद्वान साथी हैं इस पे कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे? नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है अभिषेक जी, उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमको। हम जो एक्सपर्ट हैं उनको सर उसमें इतना ही कहा जा सकता है जी एट द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कि इन सच टाइप ऑफ द डिफॉर्मिटीज लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इट बिकम इंक्रीज। तो एक मार्कर की तरह है वो, जो है उसका लेवल वहां पे अगर इस तरह का प्रोसेस होगा, डिफेक्टिव प्रोसेस होगा, तो उसमें वो प्रोटीन लेवल जो है बढ़ जाता है, तो उससे डिटेक्ट किया जा सकता है उस कंडीशन को। इतनी ही जानकारी हमको है सर, इतना ही उसमें लिखा हुआ है। अब इससे ज्यादा है तो हमारे आशुतोष यादव जी हैं, वो कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। थैंक यू सर। मैं एक लाइन को ऐड करना चाहती हूँ सर। डॉक्टर निशा फ्रॉम पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज। हेलो। बोलिए मैडम, यू आर ऑडिबल। सर अल्फा फीटोप्रोटीन की जहां तक बात हुई ना, इट इज जस्ट सॉर्ट ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट. It is not indicating that it is having neural tube defect or some chromosomal abnormality. Just हम जो screen करते हैं ना, this person is at high risk to have an congenitally abnormal fetus. That is what the test is done, and it is not indicating the neural tube defect exactly. It is just a screening test, and it is even postnatal life में भी बहुत सारे diseases में मिलती है ये, जहाँ पे liver I think it is a previous indicator. Yes, sir. After that, you can say ultrasound, etc. are required. Yes, it is then. For confirmation, other tests are necessary like USG and all. They are targeted sonography also. I think last time even I have taken the lecture on this topic. Okay, right. Yes. This is only marker for the indication. This is not a specific indication. Many abnormalities can, give the raised levels of alpha fetoprotein. Not only these neural tube defects, etc. Okay. Any congenital anomaly. It should be like the autism, ADHD, and all that. Any types. It indicated towards the congenital malformations. Anyway, it's a type of marker. So ma'am, it is it's not a flat sign for any malformation. If we detect alpha fetoprotein,
something abnormality will be happening only. Okay, that is the Or indication. Yes. Okay, so if we detect, we have to advise for some treatment or abortion. Further investigations. Yeah. Targeted sonography will confirm. Okay. So after sonography. Dr. Pankaj ji. सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर सभी को नमस्कार। सभी नमस्कार। हेलो। हाँ सर, बताइए सर। सुन रहे सर, बोलिए सर। ये जितना भी डिस्कशन चल रहा है, तो जो मुझे जो समझ में आता है कि ये जो फोलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स है, या एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, या स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह बताए जा रहे हैं, मार्कर वगैरह, ये सब पहले तो ये सब सारी चीजें नहीं थी, और उसके बावजूद भी हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने और ऋषियों ने, महर्षियों ने उन सारी चीजों का हमारे यहाँ वर्णन किया है कि गर्भधारण से लेकर के, कंसेप्शन से लेकर के, हेलो आपकी आवाज आ रही जी, कंसेप्शन से लेकर के पूरे प्रेगनेंसी पीरियड और फिर डिलीवरी तक, वो सारी चीजों को उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे हमें कंसीव करना, इवन इनिशियल स्टेज से लेकर के फर्टिलाइजेशन से, और उसके पूर्व जो भी हमें जो सारी तैयारियां करनी होती हैं, उसके बाद उन्होंने गर्भ संस्कार भी बताए हैं, गर्भिणी परिचर्या भी बताई है, सारी चीजें बताई हैं, और हमारे षड्भाव जो समुदाय बताए हैं, जो हैप्पीनेस वगैरह की चर्चा हो रही है, उसमें उन्होंने मात्र पित्तज के साथ रसद, सत्वज, सात्वज, सारी चीजें उन्होंने उसमें इंक्लूड की, जो हमारे गर्भ को पुष्टि प्रदान करते हैं और उनके डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, चाहे वो मानसिक भाव हो, चाहे वो शारीरिक भाव हो, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। इसलिए उन्होंने उन सब चीजों का वर्णन किया, और आज इसी पे ज्यादातर जो है वो फोकस कर रही है सारी दुनिया की। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स का जो क्राइटेरिया इस समय हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि हम कैसे जो हमारी प्रोजनी जो है वो हायर क्वालिटी की हो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड है। उन्होंने गर्भवती परिचर्या में वो सारी चीजें, औषधियों से लेके, द्रव्य से लेके, आहार से लेके, मानसिक भाव, सब कुछ उन्होंने इंक्लूडेड कर रखा था, किसी भी तरह से गर्भ में कोई भी तरह की विकृति उत्पन्न ना हो। और वही सारी चीजें अब हम उसको साइंटिफिक वे में, आज के दौर में हम उसको जो है वो प्रोटीन है, विटामिन का कमी है, फोलिक एसिड कमी है, जो भी है वो सारी चीजों को हम उसको अपने पैरामीटर में साइंटिस्ट आज के उसमें वो कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो सब कुछ ऑलरेडी हमारे यहाँ मेंशन्ड है सारी चीजें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें ये किस चीज की कमी हो रही है और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आज के भाव में हो सकता है ये, और लेकिन पहले उन्होंने सब कुछ चीजों को, उन सारे बिंदुओं पे सब कुछ उन्होंने ध्यान दिया होगा, उसी आधार पर उन्होंने सब कुछ उसको पूरा जो है वो एक रेजिमेंट उन्होंने निर्धारित किए, डिसाइड किए हमारे आचार्यों ने। तो उनमें से कोई भी चीज की अगर कमी होती तो वैसे ही भाव, वैसे ही डिफॉर्मिटी उसमें गर्भ में उत्पन्न होती, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, या किसी भी तरह के हो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। वन मोर एक चीज था सर, जो अभी फोलिक एसिड हम हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं सर, जैसे गर्भिणी को लेना ही चाहिए ऐसा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि वो सबको जरूरी तो नहीं है फॉलिक एसिड सर, सिर्फ कुछ को जिनमें रिड्यूस है, कमी है। तो अगर हम किसी को जरूरत नहीं है फॉलिक एसिड और दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो जैसे सर पहले विटामिन का था कि हम विटामिन पिल्स ऐसे ही दे देते थे, तो एक नया डिसीज आ गया हाइपर विटामिनोसिस, तो ऐसा ही सर फॉलिक एसिड का ज्यादा देने से भी कुछ हो सकता है सर? एक्चुअली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो तो अपने आप, अपनी एक जो भी उनका जो एक लिमिट है उससे बाहर ज्यादा होगा तो अपने आप एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। बट एक नया डिसीज अभी सर बहुत सारे आर्टिकल है, वो ऐसे विटामिन के लिए जो एक्सक्रीट नहीं हो पाते और हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे एडी वगैरह वगैरह और सारी चीजें हैं उन कंडीशन में। फॉलिक एसिड के लिए भी कुछ हो सकता होगा सर ऐसा? मे बी अगर ज्यादा वो कैलकुलेट करके देखते हैं डोजेस को, कितने मंथ में कितनी आवश्यकता हो सकती है प्रेगनेंसी में। डोज से ज्यादा कोई भी न्यूट्रिएंट होगा तो वो प्रॉब्लम, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है कि एक प्रेगनेंसी पीरियड में एक माँ को और बच्चे के लिए कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ही उतना वो डोज देते हैं, उतना रेजिमेंट वो फॉर्म करते हैं, जो डोज एंड डोजेस बोथ। ज्यादा किसी भी चीज का कुछ भी होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी और दिक्कत तो होगी। फिर पंकज जी की बात पे मैं एक कहना चाहूंगा कि पंकज जी ने कहा कि आयुर्वेदिक के जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने सब बताया था ऑलरेडी, तो अगर हम दोनों की हेल्प ले लें तो उसमें ज्यादा बेटर होगा। हाँ कर सकते हैं ना सर, नहीं दोनों को मिला के चीजों को कंसीडर करें तो वो ज्यादा बेटर है। फॉलो नहीं,
जी जी सर एक्चुअली क्या हम अपनी ही चीज को फॉलो नहीं करते, हम में से कितने लोग नहीं या हम, हमारे समाज में हाँ कितने लोग इसलिए इसको हमने फॉलो कहा करते कि उसमें 10th चैप्टर में पूरा प्रोविजन बताया गया है, सुश्रुत में हमारे सब बताया हुआ है, जी सब कुछ बताया उन्होंने। एवं जब उन्होंने सद्भाव सब कुछ समुदाय बता बताया हुआ दिया, है, तो उसमें ये भी वो बताया कि ज्यादा हमारी अप्रोप्रिएट मानसिकता है इसको कैसी हो, प्रिवेंट करने में, या अगर हमारी प्रिवेंशन अगर मानसिकता करना है कैसी तो हो वो हमें। ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर जी जो आप कहना चाह रहे हैं। इसीलिए गर्भ संस्कार का आज इस समय जो है चलन ज्यादा बढ़ गया है। अब आजकल लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं। भाई कौन नहीं चाहते प्रोजनी अच्छी हो, या कोई देश या कोई समाज कौन नहीं चाहता है। इसीलिए आप जो है अब आगे चल के यूजेनिक्स यूथेनिक्स यूफेनिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क होने वाला है, और चल रहा होगा शायद कई जी जी जगह। उसमें सर इनिशियल वही स्टेज है। से लेके कंसेप्शन कैसे हो, राइट से जाए लेफ्ट से जाए, और क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सा किस करवट, मतलब वो सारी चीजें जो उन्होंने बताई हैं वो सब कुछ एक अपने उनका एक ऑब्जर्वेशन जो है, उनका जो एक नॉलेज है। जो आप तो होते हैं, आप तो में हमें व्हाई और क्यों वगैरह का क्वेश्चन नहीं होता सर, उसको हमें एक श्रद्धा के रूप में सर स्वीकार करना उनका हो तो तो है मानना ना, होता है। उनका तो था ना, एवं जाता रूपवंत सत्वंत स्थिरा ऐसे भवंत से मोक्ता सतपुत्रा पुत्र ने सब कुछ का, सुनो, उन्होंने है ना, वर्ण फूड वगैरह प्रोजेनी तक का प्रोड्यूस सब कुछ करने बता के दिया उन्होंने कैसा वर्ण सारे का होगा। प्रोसीजर जो है वहां पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, हाउ वे कैन प्रोड्यूस द उन्होंने फूड इवन प्रोजेनी। वर्ण वर्ण तक बता दिया कि क्या आप क्या सेवन करेंगे तो क्या महाभूत क्या दोष कब होगा और कैसा बिल्कुल वर्ण बिल्कुल, होगा, एक एक चीज जो है उसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ। फुल्ली, तो क्योंकि वहाँ आप प्रोजेनी प्रोड्यूस जी करना जो है वो है ना देवरिन, वो सबको उन सब के लिए, ना कि ओनली फॉर प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, आप इज नॉट क्वेश्चनेबल, आप तो जो है वो श्रद्धा से स्वीकार करना होता है। बस बस बस, पहले जो है धीरे इसको, धीरे लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और विश्वास देने लगे। जो ध्यान दे रहे हैं, जो कहा गया है, अब ध्यान देने लगे हैं सब लोग। पहले को विश्वास कम हो गया था इसमें लास्ट 10 to 20 years, but now the people are coming back to our traditional cultures and Ayurveda also. Hello. 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 अनुराग जी आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी नहीं आ रही है आप लोग की वॉइस, क्लियर नहीं हो रही, बीच बीच में आ रही है सर। नेट प्रॉब्लम लग रही है मुझे आज। हेलो। दोनों को एक हाँ दूसरे की बोलिए बात मैडम, नहीं आ रही। बोलिए। हाँ सर, मुझे वही कहना है सर, बस यही कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है या जो है, उनको अगर हम कर रहे हैं, फॉलो करते हैं, तो निश्चित रिजल्ट अच्छे आते हैं। और ऐसा नहीं सर कि सिर्फ लिखा हुआ है, वो हम लोग देख भी रहे हैं। जो उन चीजों को नहीं फॉलो करते हैं, आज के अकॉर्डिंग नहीं चलने का आहार विहार जो बताया गया है, आज वही उसी का तो नतीजा है सर कि इतने सारे हमें एनॉमलीज मिलने लगे, बच्चों में कमियां, या शुरुआत से ही दिक्कतें, इतनी सारी डिजीजेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए वजह से हो रही हैं। तो अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, अपनी जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में परिचर्या लिखा है, या हमें जो क्वेश्चंस लेने के लिए कहा गया है, उनको फॉलो करें, तो निश्चित ही इस तरह की एनॉमली से हम लोग बच सकते हैं, जी अपनी जनरेशन को बचा सकते हैं। मुझे तो सर यही कहना है कि जो प्रिवेंशन के रूप में हमारा आयुर्वेद इसमें अग्रणी है। वो तो अलग है सर कि मॉडर्न में भी है कि वो आप न्यूरल डिफेक्ट को रोकने के लिए अपना फॉलिक एसिड्स और मल्टीविटामिन दे रहे हैं, उनको दीजिए, साथ में अपने संस्कारों को, अपनी चीजों को भी फॉलो करें, तो निश्चित ही हमारी प्रोजनी जो है ना, वो सुप्रजा कहलाएगी, होगी भी, कहलाएगी नहीं, होगी ही सर। तो आपके पीएचडी भी इसी पर है, तो उसमें कुछ मेंशन किया है तो उस पर प्रकाश डालिए। जी सर। आपकी पीएचडी भी इसी पर है। दैट्स वाई, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सर, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ ज्यादातर देखा गया है, जो जिस तरह की डिफेक्ट्स है, उसमें मधुर रस की कमी है का देखा गया है। और जो गड़बड़ी परिचय है, इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंसी जो भी मधुर द्रव्यों, दूध, घृत, मधुर रस का सेवन ही बताया गया है पूरे हमारे जो परिचर्या है, कि इनका सेवन करने से हमारी जो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज है, उन पे हम कवर अप कर सकते हैं। हेलो। जी बिल्कुल ठीक कहा अनुभव जी आपने। बेसिकली हमारा जो आयुर्वेद है वो नेचुरल चीजों को प्रोपोगेट करता है। बिल्कुल सर सर ठीक है, देखिए, अगर तो हाँ, मैंने अगर उनको मैंने एक मिनट, मैंने शुरू में ही बताया, जो नेचर है वो कंट्रोल करती है इस प्रोसेस को, प्रोसेस बिल्कुल ऑफ सर, द कंसेप्शन को। 50% विल बिकम अबॉर्ट, वी डोंट नो, क्योंकि उसमें वो अप्रोप्रिएट अगर नहीं होंगे, उनमें कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशन होंगे, तो उसको नेचर एक्सेप्ट नहीं करती है।
और उसमें जेनेटिक कॉज आते हैं 50% आते हैं, रेस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल आते हैं। एनवायरमेंटल में ये सारे जो आयुर्वेद में डिस्क्राइब कॉज हैं, जो भी प्रोसेस है वो सब डिस्क्राइब्ड है। तो नेचर के जितना नजदीक हम रहेंगे उतना ही जो है चीजें नॉर्मल होती हैं। अदरवाइज नेचर है ना सबको कंट्रोल करने के लिए, और जहाँ कंट्रोल आउट ऑफ नेचर हो जा रहा है वहाँ वो कंट्रोल नहीं होता। तो हम लोग क्या जैसे कि कितना जापान में अच्छे हुआ से था। डिफाइन किया गया कि ऋतु क्षेत्र जो है फल बीज कैसे होने चाहिए, काल कैसे होने चाहिए, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। उसको हम लोग ने कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर उन पे जी जी। पूरा ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित है तो सुप्रजा उसके होने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके आशुतोष यादव जी ने कहा है ना, आपका पीएचडी है तो आप उसके बता सकते हैं बढ़िया से ये चीज। हाँ, तो वही बता उसी वही तो मतलब मेरा यही इन्हीं चीजों पे तो वर्क है कि क्या क्या हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। मैंने तो इन्हीं चीजों को देखने की कोशिश की है कि जो आयुर्वेद में कहा गया है उसको मॉडर्न क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे अपना आयुर्वेद की चीजें बहुत अप्रोप्रिएट लगती हैं कि हमें जब भी कोई चीजों को जो हमारे वो कहे गए हैं ऋतु क्षेत्र अंबु बीज वो का जो काल एप्रोप्रिएट है कहा ही गया है, उन पे उसमें। ध्यान देना चाहिए। अब उसमें जो डाइट पैटर्न बताया है गर्भिणी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें जाके देख लीजिए, उसमें कोई आहार उसमें ये जो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया है। ठीक है, मतलब हार्ड चीजें जो डाइट में होती हैं जैसे अब एप्रोप्रिएट आई कैन नॉट से, क्योंकि वो जो क्रिटिकल पीरियड है वो 3rd वीक से 8th वीक तक होता है। उसको ज्यादा सेव करना है, प्रिवेंट करना है। वो सारी जो है प्रिवेंशन वहाँ पे पॉसिबल है। अदरवाइज नर्वस सिस्टम जो है वो तो आफ्टर बर्थ भी डेवलप होता रहता है अप टू द एज ऑफ द 25 ईयर्स। तो उसका एक अलग सिनारियो है। बहुत बढ़िया सर, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम किसी क्लासरूम में रह गए हैं और इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। आफ्टरवर्ड्स जैसे अपना पीजी की टीचिंग होती है उसमें जो 2 बजे बाद में जो क्लासरूम टीचिंग है डिस्कशंस का, बिल्कुल वैसा सेशन चल रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन क्या है, ज्ञान अनंत है, ज्ञान की सीमा अनंत है। और हम कोई और प्रश्नोत्तरी हो तो वो भी अपन लेकर के और उसको कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहेंगे। राकेश सर, अब इतना चर्चा हो रही है तो हमें भी एक डिजायर हो रहा है, उत्कंठा हो रही है कि आप अगला 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 आपका करवा देते हैं सर। हाँ, अगला आप रख दीजिए। इसीलिए सर सारे विद्युत जन हैं, ये क्वेश्चन हमें अभी तक हो सकता है कि इसमें सोल्यूशन निकल जाए। अभी प्रोफेसर सुनील जी ने चर्चा भी किया था। जी जी। तो ये हेमेंजियोमा ये टर्म आया था, तो ये हेमेंजियोमा हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या एनी अदर डिफेक्ट है, ये केवल मैं जानना चाहता हूँ कि हेमेंजियोमा एक्चुअली डिफेक्ट है क्या? हेमेंजियोमा, यस, मुझे लगता है कि हेमेंजियोमा जो टर्म है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज होगी जहां तक मेरा मानना है। और अगर कोई न्यूरल डिफेक्ट के रूप में हेमेंजियोमा यूज होता तो फिर वो न्यूरल डिफेक्ट के रूप में कंसर्न में उसको हेमेंजियोमा में डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन आज जो आपके वक्ता हैं वो तो अभी जा चुके हैं, वो तो अभी उनको कहीं अर्जेंट जाना था। तो आपके सवाल को अगर कोई यहाँ कोई साथ में शेयर करना चाहता तो करे, नहीं तो उसको हम पेंडेंसी रखते हैं। इसीलिए मैंने अपनी उत्कंठा व्यक्त किया, डिजायर व्यक्त किया कि यहाँ पे सारे लर्नेड पर्सन हैं, जी 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 जी, बात को समझा सके या उत्तर दे सके, तो इसको अच्छे से हम लोग समझे कि कैसे ये क्या डिफेक्ट एक्चुअली नर्वस सिस्टम का है या एनी अदर साइट का है जो कि वहाँ रिफ्लेक्ट करता है, या ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है ये तो एक तरह का हेमेंजियोमा। It is related with vessels, as the name suggests. ट्यूमर मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स है। मैं वही कहना चाहता था, ये जरूरी नहीं कि आप उसी से कंसर्न हो, आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही अपन मान करके चलेंगे। हेमेंजियोमा तो कई टाइप के होते हैं, एक्चुअली हर जगह हो सकते हैं, कहीं भी हर जगह हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, स्किन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो एक बड़ा न्यूरोलॉजिकल कोई कंसर्न हो न्यूरल डिफेक्ट के रूप में अगर कहीं अपन देखें तो वो एक अलग पार्ट हो सकता है। तो इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट इटसेल्फ। हेमेंजियोमा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट? जी जी जी। I think it is benign, non-cancerous and blood vessels disease. नहीं, वो तो बिनाइन बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिपेंड करता है, वो तो कंडीशंस के ऊपर है। लेकिन हेमेंजियोमा की बात करेंगे एज पर एज तो वो तो एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मैं वही कह रहा था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंसर्न है ना, तो एक बड़ा विषय है। तो कहीं किसी भी लेवल पे हेमेंजियोमा डेवलप हो सकता है, वो हो सकता है अपन जी। हाँ, इसको अपन
इसको अपन अलग से कर सकते हैं। जी 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 जी। आशुतोष जी, मैं ये दूसरी बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अभी व्यस्तताएं हैं, हमारे पास हमारी स्थिति हो रही है कि हमारे पास वक्ता बहुत हैं और महीने एक आधा ही आता है चक्कर ये। राइट सर, हमें हम सब लोगों का हमारे चाहेंगे। राकेश शर्मा सर का मतलब एक्सपर्ट कमेंट आ जाए और अरे सर ये क्लोजअप हो एक्सपर्ट मत बनाइए, हम तो बस आपके साथ ही हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बस आपके साथ में चर्चा करते हैं। आप हर आदमी अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पे उनका एक्सपर्टाइज है, और हम सब यहीं आज इस जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें आपस में शेयर करते हैं। और एक्चुअली इनफैक्ट ये बात का जो पोस्ट जो हमारा डिस्कशन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कशन, नेचुरली यही एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा न्यूट्रिशन का माध्यम है, जो है नॉलेज न्यूट्रिशन का। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब इतना टाइम डिवोट करते हैं। सर आजकल कौन करता है, तो ये बड़ी बात है कि आप सब लोग इस पर्पज से जुटते हैं और समय देते हैं, ये बड़ी बात होती है सर। आजकल समय बहुत बड़ी चीज है, आजकल सबके पास सब कुछ है, सिर्फ समय नहीं है। तो हमारे इस प्रोग्राम में आप सब लोग जुटते हैं, तो यही हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा जो है आधार है। तो बहुत बहुत आभार है, आपको धन्यवाद है। तो मुझे लगता है अब आगे जो है इसको कंक्लूड करने के लिए हम आगे बढ़े सर। अब और कोई प्रश्न हो तो बताएं सर। जी सर। जी जी सचिन जी, आप कंक्लूडिंग एक बार कर दीजिए। जी जी जी। Learned dignitaries present in Rachna Sharir Sambhasha, thank you once again for joining this Sambhasha of Rachna Sharir. First of all, I congratulate Dr. Sunil Kumar Yadav ji, though he is not present, but as a formality, I will congratulate him for very nice presentation and elaboratively point out all the things related to his topic. Basically, his topic was the development of nervous system and the applied aspect related to it. So I think he has elaborated topic very well. And as per the causes are concerned, he has mentioned two causes mainly. One is the nutritional cause and another one is genetic cause. So most of the times, as Dr. K.N. Singh spoke, that is around 70-75% are related with that. But I think genetic factors are also there, and whatever is described in our Ayurveda under the headings of maybe genetics, epigenetics, there are so many things, there are so many quotations of the Sushruta and Charaka. They have mentioned of all the things before pregnancy, during pregnancy, after pregnancy. So many things are given in our Ayurvedic text. And all these things may be correlated with the genetic causes. Whenever we can't explain the things under the nutritional things, and when there is the cause of genetic level, then this will, all other things will come under that. So we may say that one is the nutritional cause and another is the genetic cause, and genetic cause may include all the things, behavioral things and all these things before and during the conception process. As per the hemangioma is concerned, I think it is mostly related with the abnormal growth of blood vessels. So it may not be related with the nervous system. And all these things have been already discussed by our esteemed speakers, and all the very much discussion on this topic was done by all the renowned dignitaries of Rachna Sharir. So once again, I congratulate our today's speaker, Dr. Sunil Kumar Yadav ji, and I also thank you all the dignitaries from all over the corners of India
for participating in this our Rachna Sharir Sambhasha and giving valuable your inputs and explaining this topic very much to our audience of Rachna Sharir. So thank you once again. Thank you, sir. Namrata ji. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Manjula Mishra, ma'am, our Central Zone Coordinator, for vote of thanks. थैंक यू मैम। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुनील कुमार यादव सर को हमारी पूरी रचना शायरी संभाषा टीम की तरफ से हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सर ने आज नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और उसके क्लिनिकल कोरिलेशन विषय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया और सर ने सभी श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर बिल्कुल बनाए रखे। बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला व्याख्यान था सर का। अगेन थैंक यू वेरी मच सर। मैं डॉक्टर निरंजन गौतम सर को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने संभाषा में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। आज की संभाषा में हमारे बीच कई विषय विशेषज्ञों की उपलब्धि रही। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, जिनमें हमारे बीच डॉक्टर दिनकर शर्मा सर, डॉक्टर रीता मरवा मैडम, डॉक्टर कंठी सर, डॉक्टर KN सिंह सर, डॉक्टर पंकज गुप्ता सर, डॉक्टर निशा भालेराव मैडम, डॉक्टर अमित शर्मा सर, डॉक्टर विजय लक्ष्मी मैडम, डॉक्टर योगेश वाणे सर, सभी उपस्थित थे। इनके भी हमें उद्बोधन प्राप्त हुए। इसके लिए हम सभी पूरी रचना शायरी संभाषा टीम सभी का हृदय से धन्यवाद देती है। इस बीच मैं जिन लोगों का नाम ना ले पाई हूँ उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ एवं सभी श्रोताओं का विशेष रूप से धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति से ही हमारे यह संभाषा का कार्यक्रम जो है सफल हो पाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी टीम में हमारे मार्गदर्शक, हमारे कन्वीनर डॉक्टर राकेश शर्मा सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे को कन्वीनर डॉक्टर नम्रता तिवारी मैडम, डॉक्टर सचिन खेड़ीकर सर, डॉक्टर अमोल देशपांडे सर हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इस संभाषा का आयोजन किया जा सके। इसी के साथ हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर गौरव सोनी सर, डॉक्टर गजेंद्र गौरव सर, डॉक्टर सचिन शर्मा सर, डॉक्टर प्रसन्ना एस सर और डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव मैडम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन। आपका भी धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अब कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव मैडम को बुलाना चाहूंगी कि मैडम शांति मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम का सफल आयोजन और समाप्ति का आह्वान करेंगी। डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव मैडम। आइए हम सब मिलकर शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार। नमस्कार।